ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ موسیٰ ندی متاثرہ خواتین میں ریاستی وزیر سیتکا نے فی کس 2 لاکھ روپے کے چیکس کی حوالے، ملک پیٹ متاثرین بھی شامل۔ زندگی میں تبدیلی پر اظہار مسرت، بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر۔ دلی رقم منتقلی کے لیے موسی پروجیکٹ 25,000 کروڑ روپے میں پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ کے ٹی آر کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن۔ ریاست کی 9 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کا تقرر۔ پروفیسر کمار منگلا رام عثمانیہ یونیورسٹی، پروفیسر الطاف حسین ہوں گے مہاتما گاندھی یونیورسٹی کے وائس چانسلر۔ ریاست دستور اور قانون سے چلائی جاتی ہے، بندوق سے نہیں۔ اتر پردیش میں دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بہرائچ انکاؤنٹر پر بیرسٹر اویسی کی یوگی حکومت پر تنقید۔ بائیک آہستہ چلانے کی تاکید پر زدوکوبی کا شکار ضعیف شخص علاج کے دوران فوت، بائیکر کو پولیس نے کیا گرفتار۔ اور ناقابل استعمال چکن کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، گودام میں جی ایس ایم سی اور نارتھ زون ٹاسک فورس کا دھاوا، 200 کلو گوشت ضبط۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر، ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماوین گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماوین ہائٹس ملے پلی، ماوین زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماوین فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماوین پرل اور ماوین ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماوین آشیانہ ملے پلی، ماوین کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی وزیر سیتکا نے موسیٰ ندی کے متاثرین میں سیلف ہیلپ گروپ کے 3 کروڑ 44 لاکھ روپے کے چیکس خواتین میں تقسیم کیے۔ پرجا بھون میں منعقدہ پروگرام میں چیکس تقسیم کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल होने से तकलीफ होती है, मगर हक़ाइक़ को कबूल करें। हाल ही में चेन्नई और खम्मम में सैलाब में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मूसा नदी के गंदे पानी की वजह से बीमारियों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मूसा नदी के मुतासरीन की हुकूमत हर तरह मदद करेगी। मुतासरीन में हर खातून को 2 लाख रुपए की मदद की जा रही है। हुकूमत की जानिब से इसमें 1,40,000 रुपये मुफ्त दिए जा रहे हैं। ख़वातीन को सिर्फ 60,000 रुपये अदा करने होंगे। हर माह 2,000 रुपये अदा करने होंगे। तुलबा को मुफ्त तालीम के लिए स्कूल में दाखिला दिया जा रहा है। సహకరించినందుకు వారికి మా శ్రీలత గారికి అదే విధంగా ముఖ్యంగా సీఎం గారు కూడా ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఫ్లాట్స్ గాని ఇండ్లు గాని ఎట్లా వీలైతే అట్లా సెటిల్ చేయాలి, పేదవాళ్ళకు ఒక పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్, పర్మనెంట్ ఇల్లు, పర్మనెంట్ అసెట్ లాగా ఉండాలని వారు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరందరూ కూడా సహకరిస్తున్నందుకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మీరు నెలకు 2,020 రూపాయలు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కట్టాలి. అది కూడా ఎంతో 60,000 కడతారు. 1,40,000 ఫ్రీగా, 1,40,000 ఒక్కొక్కరికి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. మీరు వాటిని దయచేసి ఏదైనా షాప్ పెట్టుకోండి, ఏదైనా పండ్ల షాప్ పెట్టుకోండి, పూల షాప్ పెట్టుకోండి, కిరాణం షాప్ పెట్టుకోండి. మనం పెద్దగా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, చిన్నగా మొదలు పెట్టి పెద్ద స్థాయికి రావచ్చు. అట్లనే మనం ఇంకా మహిళా గ్రూప్ सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मूसा नदी के चादर घाट से लगे इलाके के मकीनों की बाज़ाबातकारी के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से न सिर्फ उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम हुए हैं, बल्कि इमदादी रकम भी हवाले की गई है। प्रजा भवन में जुमे को मुनक्कदा तकरीब में तकरीबन 11 ग्रुप्स के तहत 110 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए गए। रियासती वजीर सीतक्का के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार और रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहीउद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि मूसा नदी से लगे इलाकों के 228 अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए। हमेशा बारिश के मौसम में यहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आम दिनों में भी आलूदगी की वजह से मुश्किलात दरपेश थीं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए और सब्सिडी के जरिए 2 लाख रुपए का खर्च फराहम किया गया और मजलिस की नुमाइंदगी पर दूसरी रकमी इमदाद भी फराहम की गई। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। अवाम ने बताया कि उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई है। उनके बच्चों के लिए तालीम का भी इंतज़ाम कर दिया गया है। अब जो इमदाद जारी की जा रही है, इससे वो नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। मजलिस ने मलकपेट में मुतासरीन की हर तरह से मदद की। न सिर्फ उन्हें आशियाना फराहम किया, बल्कि माली इमदाद भी यकीनी बनाई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतासरीन को मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। दूसरे हल्के जात में भी मजलिस अवाम और मुतासरीन की मफादात को अवलीन तरजीह दे रही है और उन्हें किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही है। कुछ मुफाद परस्त अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम और मुतासरीन को ऐसे अफराद के झांसे में नहीं आना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब रोज़ अवाम के बीच में रहकर उनकी मदद करती रही है और आइंदा भी अवाम के हर मसले पर उनके साथ खड़ी रहेगी। अवाम किसी भी तरह के मसले के लिए मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों से रुजू हो सकते हैं। पलकपेट में थे हम लोग, वहाँ से अब घर हटा के वहाँ पर गए। खुशी हो रही है बहुत, कितना खुशी से मैं बोल नहीं सक रही कुछ भी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। जितना भी शुक्र अदा करो कमी है। हमारा बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। पहले परेशानी हुई मगर अब सुकून है बहुत, अल्लाह का फजल। शंकर नगर में रहने वाले थे। शंकर नगर से हम लोगों को डबल बेडरूम मिला है जो चंचलगुड़े में। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सब अच्छा है। मेरे बच्चों का वायरल हुआ है वीडियो, वो वीडियो वाले आकर लिए, वो लोग घर में खेल रहे थे तो उन लोगों का वीडियो लेके वायरल कर दिए लोग। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। वहाँ पर 2 लाख रुपए का चेक भी मिला है। अकबरुद्दीन साहब का, बलाला साहब का, असदुद्दीन साहब का शुक्र अदा करती हूँ। सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ की फैसिलिटी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बलाला साहब का। और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आंगनवाड़ी कल खोले
साहब आए थे बलाला साहब, और पढ़ाई की भी कुछ भी फिक्र नहीं है, अब सब चीज हो गया, हमको पानी की सहूलत सब कर रहे। आज यहाँ पर मूसी के अंदर जो लोगों के घरा जो इफेक्ट हो रहे थे मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वहाँ के करीब 228 लोगों को जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने डबल बेडरूम मस्जिद से नुमाइंदगी करके दिलाई है, जिनको हमेशा वहाँ पर तकलीफ रहती थी कि चाहे बरसात हो या उस्मान सागर हिमायत सागर के अगर से डोर्स भी खोले तो घरों में पानी आ जाता था। और वहाँ तक कि हमने तो यहाँ तक देखा कि इतनी ऐसी हालत में थे वहाँ पे लोग कि उसके आसपास जो लोग एसियाँ हैं जिसके घर में, वो मूसी की पोल्यूशन की वजह से एसियाँ और फ्रिजा ख़राब हो जा रहे हैं लोगों के घरों में। तो ये पोल्यूशन में ये लोग कैसा रह रहे थे वो मुझे मालूम है और ये लोगों को मालूम है। आज इन लोगों को वहाँ से डबल बेडरूम देकर शिफ्ट किया गया है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना अपना अलग मसला है। मेरी मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये तकलीफ थी, जो तकलीफ के अंदर हमने इलेक्शन में भी वादा किया था, तो सदर मजलिस असद साहब से बोलकर, हमने हुकूमत से बोलकर इनको वहीं पर डबल बेडरूम दिलाए हैं। और आज हुकूमत ने 2-2 लाख रुपए UCD के ज़रिए लोन देने का, ग्रुप लोन्स के अंदर 2-2 लाख रुपए लोन दिए। तो हमने कहा कि सब्सिडी जो SC ST BC माइनॉरिटी में जो सब्सिडी है वो सब्सिडी के तहत दीजिए आप। तो इसलिए उन लोगों को 1,40,000 सब्सिडी मिला, 2 लाख में से 4 लाख रुपए उन लोग को भरने का, 40,000 रुपये 60,000 रुपये भरना है, 1,40,000 रुपये उनको सब्सिडी है। इसके अलावा तमाम कॉरपोरेशन के अंदर सेविंग मशीन्स भी है, तो ये डबल बेडरूम के जितने भी लोग हैं उनको सेविंग मशीन्स के लिए भी हमने कहा, तो हुकूमत ने उसके लिए भी हामी भरी है। और वहाँ पर जो भी अगर कुछ तकलीफ तो नहीं है, अगर कोई तकलीफ भी है तो हम उसकी एक्सुई करेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा, रेवंत रेड्डी दिल्ली को रकम रवाना करने के लिए मूसा नदी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में रेवंत रेड्डी की प्रेस मीट का जवाब देते हुए मूसा नदी प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए KTR ने तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा, उन्हें शक है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की जहनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मूसा नदी प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा था अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ, जबकि उन्होंने खुद ऐलान किया कि मूसा नदी के प्रोजेक्ट पर 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और अब खूबसूरती का लफ्ज़ हटाकर सिर्फ मूसा नदी को जिंदा करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को रकम रवाना करने की रेवंत रेड्डी मूसा नदी से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। नोट तब्दीली के वक्त नरेंद्र मोदी हर दिन एक बयान दे रहे थे, इसी तरह के बयानात रेवंत रेड्डी आज दे रहे हैं। कल उन्होंने जो कहा वो सब गलत है। कांग्रेस के लिए तेलंगाना ATM बन चुका है। KTR ने कहा, वजीर आला के ओहदे पर रहकर इतना झूठ बोल रहे हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ में होगा, इसके लिए इतना उछल कूद क्यों कर रहे हैं? किसी गरीब को नुकसान पहुंचाए बगैर BRS पार्टी के डिजाइन को मुकम्मल करें तो मूसा नदी दोबारा जिंदा हो जाएगी। BRS गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। KTR ने कहा, 6 गारंटियों पर अमल करने के लिए रकम नहीं है। मूसा नदी की सफाई की रकम कहां से आ रही है? रेवंत रेड्डी ने जो बताया है उसे देखकर हर कोई इसे स्कैम समझ रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए लाइन क्लियर कर दी है। इस माह की 21 तारीख को शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान मुनक्किद होगा। अदालत की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सवाल करते हुए उम्मीदवार डिवीजन बेंच से रुजू हुए थे। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद किया। अदालत ने कहा, शेड्यूल के मुताबिक ही इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं। वजीर आला रेवंत रेड्डी से अदानी ग्रुप के सदरनशीन गौतम अदानी ने गैर सगाली मुलाकात की। वजीर आला की क़यामगाह पर गौतम अदानी ने अदानी फाउंडेशन की जानिब से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिये का चेक वजीर आला के हवाले किया। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे मौजूद थे। BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा, रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के मूसा नदी के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे तो वो भी तैयार है। जुमेरात को वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए उनका कहना था, मल्लाना सागर में मुतासरीन को जो RNR पैकेज दिया है वो दें। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी काम अवाम नहीं बल्कि वजीर आला रेवंत रेड्डी गैर कानूनी तौर पर गरीब अवाम की अराजियात को छीन रहे हैं। हरीश राव ने कहा, 4 सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार किया जा रहा है, अवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? नलगुंडे के अवाम को इश्तियाल दिलाकर सियासत की जा रही है। अगर रेवंत रेड्डी संजीदा हैं तो वो नलगुंडे के अवाम से मोहब्बत है तो सनतों से निकलने वाले फुजले को मूसा नदी में ना मिलाएं। इसके लिए इक़दामात की ज़रूरत है।
गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हुकूमत की सिफारिश पर रियासत की 9 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में राजभवन की तरफ से इलामिया जारी किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार मंगला राम मुकर्रर किए गए हैं। प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडे का वाइस चांसलर बनाया गया है। काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रताप रेड्डी होंगे। पालमुरू यूनिवर्सिटी महबूबनगर के लिए प्रोफेसर जीएन श्रीनिवास, सतवाना यूनिवर्सिटी करीमनगर के लिए प्रोफेसर उमेश कुमार, तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद के लिए प्रोफेसर आनंद राव को वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद के लिए प्रोफेसर यादगिरी राव, जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद के लिए वाइस चांसलर अलदास जानिया होंगे। कोंडालक्ष्मण तेलंगाना हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर राजी रेड्डी को वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। वजीर जंगलात व एंडोमेंट कोंडा सुरेखा ने कहा, एको टूरिज्म की पॉलिसी को फरोग दिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, एको टूरिज्म को फरोग देने के लिए जंगलात और जानवरों को किसी किस्म की मुश्किलात दूर करते हुए मनसूबाबंदी की जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि अराजी तफसीलात की जियो टैगिंग की जाए। वजीर मौसूफ ने कहा, एंडोमेंट महकमे का ऐप तैयार किया जा रहा है। सयाहों को राग़िब करने के लिए एको टूरिज्म को फरोग दिया जा रहा है और टेम्पल टूरिज्म को कायम करने का निशाना रखा गया है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच इनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से ठोक दो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। यूपी हुकूमत की ठोक दो की पॉलिसी दस्तूर के और कानून के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश को कानून और दस्तूर से चलाया जाए, बंदूक से नहीं। दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि तशद्दुद के दौरान जिन लोगों के मकानात पर हमले किए गए, गाड़ियों को जलाया गया, उनके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन 2 लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक। और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भी जाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूटिव बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेटरेट बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक बताया कि महाराष्ट्र के मजलिस के सदर इम्तियाज जलील ने कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले और एनसीपी के शरद पवार को 1 महीना पहले मकतूब लिखा, लेकिन अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी और शिंदे शिवसेना की हुकूमत न आए।
और अब ये विकास अघाड़ी को तय करना है। महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहां पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहां पर। और आज से 3-4 दिन पहले जो मराठा रिजर्वेशन के एक बहुत बड़े नेता हैं जनाब जरंगे पाटिल साहब से भी इम्तियाज जलील साहब जाकर बातचीत किए, बहुत देर उनसे बातचीत हुई। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हर पार्टी को अपना अपना काम करना है। मगर जहां तक हमारी पार्टी पर लोग जो हमेशा सवाल उठाते थे, मैंने दूसरी तरफ से, जनता तो नहीं, हम तो बता रहे हैं अब ये उनको तय करना है। नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहां पर। बैकुल्ला में हमारा एक एक्स एमएलए था, हम और कई ऐसी विधानसभाएं जहां पर हम लोग दूसरे पोजीशन पर आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो हमको तो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 10 असेंबली हल्के जात के ज़िमनी इंतखाब को लेकर बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस पल्लवी पटेल की पार्टी की तायद करेगी। 2 नशिस्तों पर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकाबला करेगी। झारखंड के असेंबली इंतखाबात से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि आदिल हसन और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी को झारखंड रवाना किया गया है। मजलिस के मुबस्सरीन मुकामी हालात का जायजा लेंगे। उसके बाद कितनी नशिस्तों पर इंतखाब लड़ना है, इसका फैसला किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि महाराष्ट्र में फिलहाल 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन गुद्दा सुखिंदर रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मूसा नदी को सफाई करने के प्रोजेक्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर हुकूमत ने भी रिवर फ्रंट के नाम से मनसूबाबंदी की थी, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं की। रेवंत रेड्डी कुछ नया करना चाहते हैं तो उसकी मुखालिफत करना ठीक नहीं है। नलगुंडे में किसान हजारों एकड़ अराजी पर काश करते हैं। अवाम के मसाइल पर अपोजिशन को जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने इटेला राजेंद्र से कहा कि मूसा नदी की सफाई जरूरी नहीं है तो मूसा नदी के पानी से गुस्ल करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मूसा नदी में गंदी बदबू नहीं आ रही है, इसकी सफाई की जरूरत नहीं है। ई राजेंद्र बीजेपी में जाकर आलूदा हो चुके हैं। हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने की पागल बातें केसीआर करते हैं, रेवंत रेड्डी नहीं। 10 साल की हुकूमत और 10 माह की हुकूमत में जंग चल रही है। मूसा नदी पर बीआरएस बीजेपी कायदीन अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली ए लक्ष्मण ने कहा, अराजी मुतासिन के मामले में हरीश राव के साथ खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हरीश राव वक्त और तारीख तय करें। सिद्दीपेट अंबेडकर मुजस्समे के पास खुलेआम मुबाहिस के लिए आएंगे। मल्लन्ना सागर के मामले में साबिक वज़ीर आला केसीआर को हरीश राव लेकर आएंगे तो वो वज़ीर आला के साथ मुबाहिस के लिए आएंगे। हरीश राव इस तरह झूठ बोलकर सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस की जानिब से मूसा नदी के मुतासिरीन के लिए कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग, महमूद नगर और असद बाबा नगर का दौरा करते हुए मुकामी लोगों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कानूनी इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया है। बाज़ अफराद अपने तौर पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन गरीब और मुस्तहक़ अफराद के लिए मजलिस कानूनी खिदमात अंजाम दे रही है, जिससे मुतासर अफराद अदालतों से रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के के इलाके तेवरी कुंटा और शमशान घाट वाटिका का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चंद दिन पहले दारुस्सलाम में शमशान घाट के जिम्मेदारों ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया था। उन्होंने दौरे में वहां पर जो शामिल किया है, लोगों से मुलाकात की। मस्कुरा इलाके में स्ट्रीट लाइट्स, जंगल कटिंग, शेड की तामीर के अलावा दूसरे काम थे जिसे उन्होंने पूरा करने का इरादा जाहिर किया। मुकामी मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया टी वेंकन्ना और टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर वीडीसीसी, सीसी और बीटी रोड के अलावा स्ट्रीट लाइट्स, ताड़बंद सर्कल रोड की कुशादगी और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट की अदायगी के अलावा सैनिटेशन और मेंटेनेंस के कामों के बारे में बात की गई। चेक्स की अदायगी के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया।
इजलास में मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद कादर ने शिरकत की। उन्होंने ओहदेदारों को मज़कूरा कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने हल्के मलकपेट के 28 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की मालियत 11,22,000 रुपये बताई गई। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पलाला से इजहार तशक्कुर किया। फिरका परस्त अनासिर को मुल्क में खुली छूट हासिल है। उनके तालीमी इदारों में नफरत, हिकारत और इंतहापसंदी की तालीम के साथ साथ अस्करी तरबियत भी दी जा रही है, जबकि दीनी मदारिस में अख्तार व अखलाक पर मबनी तालीम के जरिए अच्छा शहरी बनाया जा रहा है। सिकंदराबाद के लालागोड़ा पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने शांति नगर नॉर्थ लालागोड़ा के दीनी मदरसे दारुल उलूम सिद्दीक़ा पर दहशतगर्दी की तरबियत देने का इल्ज़ाम लगाते हुए 3 कम उम्र बच्चों को हिरासत में ले लिया। मदरसे के नाजिम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस बात की इत्तला दी। बैरिस्टर ओवैसी ने पुलिस के आला ओहदेदारों के बशमूल इंस्पेक्टर लालागोड़े से रब्ता किया और हिरासत में लिए गए बच्चों को फौरी छोड़ने के लिए कहा। पुलिस के आला ओहदेदारों की मदाखलत पर इन बच्चों को छोड़ दिया गया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मदरसे का मुआयना किया, नाजिम, असातिज़ा और यहाँ तालीम हासिल करने वाले तुलबा से मुलाकात की। बच्चों ने बताया कि पुलिस नाजिम के क़याम में मदरसा आई और नाजिम को फौरी पुलिस स्टेशन आने को कहा। नाजिम जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनसे कहा गया कि दीनी तालीम के बहाने दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है। कुछ बच्चों के नाम लिए और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाने को कहा। जब बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनको हिरासत में लेकर उन पर ज़्यादती की गई। उनसे कहा गया कि वो ये बोलें कि मदरसे में आतंकवादियों की तरबियत दी जा रही है। पुलिस की ज़्यादती से खौफजदा बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब नाजिम ने पुलिस ओहदेदारों से पूछा तो ये बताया गया कि इन बच्चों ने कबूल किया है कि मदरसे में दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है। इस वाक़े पर नाजिम मदरसा ने सदर मजलिस को सूरत हाल से वाकिफ कराया। मिर्जा रहमत बेग ने मदरसे का माना किया और कहा कि चंद फ़िरका परस्त अनासिर पुलिस के जरिए दीनी मदारिस को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस मुत्तहादुल मुस्लिमीन दीनी मदारिस के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अशोकनगर के इलाके में ग्रुप 1 के मेन इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। अशोकनगर में ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने मुतालबा करते हुए प्रीलिम्स इम्तिहान में जो गलतियां हुई हैं G29 पर नज़रसानी करने के बाद इम्तिहान मुनक्किद करने का मुतालबा किया। एहतजाजी राहुल गांधी का मास्क पहनकर नारेबाजी करते हुए अशोकनगर की सड़क पर निकल आए थे। वहां पर मौजूद पुलिस अमले ने उम्मीदवारों पर मुबैना लाठीचार्ज करते हुए उन्हें मुंतशिर किया। आहिस्ता बाइक चलाने का मशवरा देने पर ज़दोकोब का शिकार ज़ईफ शख्स इलाज के दौरान फौत हो गया। ये वाक़या 30 सितंबर को अलवाल में पेश आया था। तफसीलात के मुताबिक 65 साला अंजनालू नामी शख्स सड़क अबूर कर रहा था। इस दौरान बाइक सवार एक जोड़ा गुजर रहा था और जब अंजनालू ने बाइक आहिस्ता चलाने का मशवरा दिया, बाइक सवार भड़क गया और उसने ज़ईफ शख्स की पिटाई कर दी। हमलावर के साथ मौजूद खातून उसे रोकती रही। बाइक सवार के हमले से ज़ईफ शख्स नीचे गिर गया और उनके सर पर चोटें आईं। ज़ईफ शख्स को अफराद ख़ानदान ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया। हमला करने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने GHMC के साथ मिलकर नाकाबिल इस्तेमाल चिकन की फरोख्त के गोदाम पर धावा किया है। इस धावे के दौरान 200 किलो मुर्गी का गोश्त जब्त किया गया। बताया गया कि बेगमपेट प्रकाश नगर में वाक़े गोदाम पर धावा किया गया। इस गोदाम और कारोबार के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। गोदाम में नाकाबिल इस्तेमाल मुर्गी का गोश्त भरा हुआ था। बिना लाइसेंस ये कारोबार किया जा रहा था। पता चला है कि छोटे दुकानदारों को 50 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर चिकन फ़रोख्त किया जा रहा था। गोदाम के मालिक अल्ताफ़ से पूछताछ जारी है। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया इस तरह अवाम की सेहत को खतरे से दोचार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहर के नवाही इलाके अलवाल में बेटी को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने वाली मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बेटी को उसकी सगी मां जिस्म फरोशी के लिए मुबैना तौर पर मजबूर कर रही थी। मां की मुसलसल हरासानी से तंग आकर लड़की घर से चली गई और उसने अलवाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुतासरा लड़की को सखी सेंटर मुंतकिल किया। पुलिस स्टेशन में जब लड़की की मां को लाया गया तो वो और उसकी एक साथी हंगामा करने लगी।
पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। एसपी जिला संगारेड्डी चिन्नूरी रूपेश ने जिले के मनपल्ली मंडल का दौरा करते हुए रोडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद से मुलाकात की। उन्होंने मज़कूर अफराद की तफ्तीश की और मशवरा दिया कि अपनी तर्ज ज़िंदगी और सलूक में बदलाव लाएं, जिसकी वजह से इनकी हिस्ट्री शीट बंद की जाएगी। उन्होंने मनपल्ली पुलिस स्टेशन का मना किया। उनके दौरे को सालाना महीने के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी मुतासरा खवातीन में रियासती वजीर सीतक्का ने फीकस 2 लाख रुपए के चेक्स की हवाले। मलकपेट मुतासरीन भी शामिल। जिंदगी में तब्दीली पर इजहार मसरत, बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर। दिल्ली रकम मुंतकली के लिए मूसी प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। KTR का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। रियासत की 9 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर। प्रोफेसर कुमार मंगलाराम उस्मानिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन होंगे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। रियासत दस्तूर और कानून से चलाई जाती है, बंदूक से नहीं। उत्तर प्रदेश में दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहराइच इनकाउंटर पर बैरिस्टर ओवैसी की योगी हुकूमत पर तनकीद। बाइक आहिस्ता चलाने की ताकीद पर ज़ुदोकोबी का शिकार ज़ईफ शख्स इलाज के दौरान फौत। बाइकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नाकाबिल इस्तेमाल चिकन की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। गोदाम पर GHMC और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स का धावा। 200 किलो गोश्त जब्त।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔